Today we are going to start with a new topic, and the name of the topic is Preamble of the Constitution. And it is a most important topic because what is going on in our Constitution or what has been written down in our Constitution is totally means totally depending upon this factor that is what we are going to study right now. So, preamble is such a factor which is a preface of the constitution, as like we are knowing that each and every textbook, when we are opening it, it is containing certain pages. First of all, the name of the author, the name of the book, and the name of the company which is going to get published. And after that, one preface clause is there in the textbook. So that preface clause is nothing but, here in our Constitution of India, that preface is, that is in Marathi or Hindi, it is called as an Mukhaprashth. That is Mukhaprashth. It is the first page which shows you that in this book what is there exactly. So in the same way, whenever any person outside the India comes in India and he opens the book that is called as a Constitution of India, then on the first page he will be able to resemble the preamble of India. By reading that preamble, he will get a short idea of what our Constitution is. So our Constitution, in what way we are utilizing it, what are the terms and conditions, upon what idea these all things has been came, these things are going to be get declared by our preamble. So right now we'll go into and look after each and every aspect, each and every point of the preamble, each and every word of the preamble is defined, I think, in one or two paragraph only, and depending upon which the whole of the constitution, that is 395 articles, has been written down. And that is why many times this preamble is called as a basic structure of the constitution. So this basic structure cannot be get changed. And while such basic structure has been written down and it was utilized and it was what you call accepted as a part and parcel of the constitution in the constituent assembly. Right now, are you able to view the presentation? Yes, Yes, sir. sir. Great. Yes, sir. So Yes, sir. Yes. thank you very much. I'll make it somewhat big one so that you will be able to easily look it on your mobile. So there are a number of things which I have written down uh, in this preamble. So this is the part, 6 7 things are there. We have to discuss this in this preamble. So first of all, we will go and see the meaning, what exactly preamble means. So we are going to see these points one by one. We'll make it somewhat big. Is it okay? Yeah. Yes, sir. So this preamble has been defined as an introductory paragraph or part of the statute deed or other documents setting forth the ground and intention of it. So whatever the intention of the preamble is, that all things has been written down in our constitution. So the constitution maker, they required certain things to be get write down, as like, suppose for example, if a question has been asked to you, uh, whether in examination we are reading question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7. So asking this question, 7 questions in examination, and giving you the option, choice any 4 out of 7. We are starting to read the question. We are reading the question number 1, and then we are writing the answer of that question number 1. So in the same way, when this constitution has developed,
It has certain way to write the document of our constitution. The makers of the constitution are thinking that this preamble is the key to open the minds of the maker of this act. In the same way, this is utilized as a question, and 395 articles are answer to this question. Each and every word of the preamble has a great weightage in writing down this constitution. When we are going to the point number 2, we will look after that. And that is why in Golaknath versus State of Punjab, AIR 1967 Supreme Court 1643, it was observed that the preamble to an act or preamble to the constitution is an act set out the main objectives which the legislation is intended to achieve. लेजिस्लेशन को जो इंटेंशन था कि कौन सी बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, that intention is completely enshrined in this objective. Here it is to create the whole of the constitution, and to write such a whole of the constitution it requires a concrete material, a concrete idea that what kind of constitution we must have. What are the things which should be present in our preamble, and depending upon which the whole of the constitution should be get written down. And that is why preamble is said, in one case it is said by the Supreme Court that preamble is nothing but it is a key to open the minds of the maker of the constitution. Who are the makers? The Constituent Assembly has appointed one committee. They are creating, they are writing each and every aspect regarding the constitution. So this is a key to open their minds. Now, if something has placed in front of we people and we have been given just this is a key, it will be useful in your writings. But what is to be get written down has been shortly written down in the preamble. Now take this key and write the whole of the constitution. So in the same sense, whenever the lawmakers, whenever the Constituent Assembly, whenever the committee, that is the drafts committee, and the maker of the constitution, they have been given power to write down these all aspects which is embodied in the preamble in a detailed manner. This preamble is a key to open their minds, that they should not forget any aspect of preamble while writing the provision of the constitution. It should not violate the things which has been embodied in the preamble. बचपन से हम लोग कई बार बोलते आए हैं, भारत में मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई है. प्रार्थना लेते हैं हम, स्कूल में बोलते आए हैं, और साथ ही में उसके बाद में हम वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर देते हैं और हमारा प्रियम्बल भी गाते हैं हम लोग. तो प्रियम्बल बोला बहुत बार है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली प्रियम्बल इज हैज टू बी गेट नोन, that is going to be get explained today. So here preamble to the constitution, it indicates the type of government which the constitution is intended to establish and rights and freedoms which the constitution is intended to provide to the citizens. हमारा गवर्नमेंट किस टाइप का होगा, हमें क्या राइट्स दिए हैं, हमें क्या फ्रीडम्स दिए हैं, ये सारी इंटेंशंस जो भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए बेस कुछ चाहिए. उस बेस को, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रियम्बल का इस्तेमाल किया गया है, प्रियम्बल को बेस बनाया गया है. एंड लास्ट पार्ट ऑफ प्रियम्बल, it is connected with the, it indicate that ultimate source of the validity of and sanction behind the people, sanction behind the constitution is we the people of India. ये किनकी प्रेरणा से उत्पत्ति इसकी हुई, तो we the people of India, we have allowed this constitution, we have
given the validity to the constitution. We have said that this is the sanction, this is the validity behind the constitution, and those are we the people of India. इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, इस वैलिडिटी के पीछे कौन है? तो हम ही सभी लोग हैं। एंड इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से हमको देखने की मिलती है। नंबर वन, द पर्पस इट सर्व्स, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, देयर इज पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, those objectives which are present in our constitution. And third part is there, that is the date of its adoption. जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेट है जिसको हमने अडॉप्ट किया, वो डेट, उसके अंदर जिस तारीख से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, we the people of India have accepted the constitution. Such date, validity and objectives have been enshrined in the preamble. Now we'll go to the part and see the preamble, what exactly preamble will say. Till this, have you followed? यहाँ तक समझ में आ गया? If you have followed, please type followed in the chat box. Make it fast. Great. So we'll see this part of preamble. तो preamble में ये सारी चीजें जो है सामने लिखी है। Now हमारा प्रीएम्बल इस तरह से है। एक्चुअली मैंने इसको जो कलर किया है वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। ये कई पार्ट्स हम देखते हैं, यहाँ पर सामने देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग जो कलरिंग की है वो कलरिंग में इसको हमको समझना है। सबसे पहला पार्ट, ये जैसे हमने अभी ऊपर के पॉइंट में देखा था, अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो सबसे पहला पार्ट है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India, इंडिया को बनाने के लिए, एक जगह एकत्रित लाने के लिए, कौन सी चीज को और किस तरह से? into, देखिए 5 स्पेशल वर्ड अभी इस्तेमाल किए गए, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स जो है पहले 1950 के प्रीएम्बल में नहीं थे। इसमें वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर ये बाद में आए 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। फ्रैटर्निटी, ये भी वर्ड, और उसके अलावा इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, ये फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी जो वर्ड्स है बाद में जो है इसमें इंसर्ट किए गए अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ये किसने रिसॉल्व किया? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज रिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरिन, एक ऐसा देश जो ऊपर से नीचे तक साफ सुथरा, सॉवरिन, उसका पावर उसके हाथ में हो, सॉवरिन रिगार्डिंग द पावर, सोशलिस्ट, सोशल एंगल से, सेक्युलर, it create no any particular caste or particular language that is going to get treated as a secular state, doesn't, यानी कि सर्व धर्म समभाव जिसको हम बोलते हैं, लैंग्वेज या जात के ऊपर हमारे इंडिया में कोई भेदभाव नहीं है, ऑल कास्ट आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेटिक, सभी को अपनी चीज रखने का अधिकार है, वो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 में। रिपब्लिक, हमने रिपब्लिक किया है 1950 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने खुद को बहाल कर दिया, रिपब्लिक बनाया है। सो इट इज ए सॉवरिन, socialist and secular democratic and republic state. Why we are making this state in this way? So there are certain reasons. तो ये जो पहला पार्ट है ये हमने ऊपर देखा हुआ था कि अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया अथॉरिटी है, और हम ही लोग ये रिसॉल्व कर रहे हैं इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। हमारा जो स्टेट है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक होना चाहिए। लेकिन ये किस लिए होना चाहिए, उसके रीजंस नीचे की बॉडी में दिए हैं। कहां तक? येलो कलर, यहाँ पर इंटीग्रिटी ऑफ नेशन तक
ये सारे इफेक्ट्स दिए हैं। तो सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो एंगल है, जो राइट्स है, जो चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अप्लाई की है। नाउ टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर सिक्योर करने के लिए क्या दिया है हमको? नंबर वन, जस्टिस, जस्टिस दिया है। जस्टिस किस तरह का है? social, economic and political justice. Social justice has been given. Each and every person of the society has been getting all kinds of things which has been specifically given as schemes or facilities. Social angle has been connected. Economic and political aspect is also seen. So social and economic, it is hand by hand attached with each other. So for example, justice is given. हम लोग कई बार बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक न्याय मिलना चाहिए, सोशल न्याय मिलना चाहिए, सोशल बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, what it is, justice is given. On the social ground, on the economic ground, if we see the laws made for worker class, that is social and economic aspect. Equal pay for equal work, that is a social and economic aspect. Every person has been given right to contest the election. This is a social justice, economic justice and a political justice. That political justice provides you a right to contest the election. So every person who is having this right, so every citizen is having this political right as well. He can contest the election. वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, भले उसको एक वोट क्यों ना मिले, वो खुद का भी हो चलेगा, लेकिन वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसको चांस दिया गया, तो ये सिक्योरिटी मिली है। हम लोग सर्विस करने के लिए जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए सभी को सेम चांस दिया है। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम इंजीनियर। If an advertisement comes in the newspaper that at XYZ place there are vacancies for electronics and telecommunication, there are vacancies for chemical engineers, there are vacancies for computer engineer, there are vacancies for different areas of engineers, and there if we are getting the what you call advertisement, and vacancies in the advertisement has been seen by you, and if you are applying it and if you are getting selected, then the procedure is different one. For selection it requires certain process. Now the second thing under the preamble which we have to know is that liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. So belief, faith and worship, this comes under one term. Second, thoughts. Third, expression. Okay, so I'll take here example of Mr. Subodh. Subodh is writing some things regarding our nation. The good things whatever he is writing, he is expressing his thoughts and he cannot be stopped for, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक चीज है, देश के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं, वहां पर आपको राइट नहीं दिया गया है। यू कैन राइट रिगार्डिंग अवर नेशन द गुड थिंग्स। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेशन, you are doing a crime because that has been prohibited by the things. So liberty of thoughts, आपके thoughts आपको express करने का, thoughts लिखने, सोचने की, आपके सोचने के ऊपर पाबंदी नहीं है। अरुंधति उधर बैठी है, केतकी उधर बैठी है, सुबोध उधर बैठा है, और कौन कौन है मेरे को सामने जो दिख रहे भाई उनके मैं नाम लेता हूँ। प्रेम कुमार है, लकड़े हैं, दिव्या है, प्रतीक्षा है, और ये सभी लोग अपना अपना सोच रहे, सर ये क्या बोल रहे हैं सर, ये थॉट्स के ऊपर कोई किसी का ये रख सकते हैं क्या? तो हमारे थॉट्स है, हमने लिख कर रखा हमारे एक नोटबुक में, किसी को दिखाया नहीं,
सपोज केतकी को कोई पोयम लिखने की सूझ गई और केतकी ने पोयम लिख दी, तो व्हाट विल हैपन? वो किसी को दिखाया नहीं उसने, वो उसके थॉट्स है, वो डायरी में लिख दिया, उसको बंद करके अपनी अलमारी में रख दिया उसको। इट इज हर थॉट्स। किसी की सोच के ऊपर हम कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा थॉट जब पब्लिश किया जाता है तब उसको ब्रेक लगा सकते हैं। द थॉट मस्ट बी सच थॉट्स which should not go against the will and wish of the country. एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस। देखिए एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें, एक्सप्रेशन हम कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम हंसकर एग्जाम्पल देते हैं, है ना, एक्सप्रेस करते हैं। सामने वाला कोई आया, किसी ने हमको विश किया, वेरी गुड मॉर्निंग, इन रिप्लाई वी आर गेटिंग गुड मॉर्निंग विद अ ग्रेट स्माइल। सो व्हाट इट इज? एक्सप्रेशन दैट ही हैज गिवन रिस्पेक्ट टू वी पीपल। सो दैट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सी चीज का? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमको सभी लिबर्टी दी है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। हम कहीं खड़े होकर हमने जो लिखी हुई कविता है कुछ ऐसे शब्दों में लिखकर देश के अच्छे और बुरे चीजों को हम उसके अंदर लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट में भी हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन इज उसका कहीं भी उल्लंघन ना हो, किसी व्यक्ति का के विचारों का उल्लंघन ना हो। सो इस तरह किसी को हर्ट न करते हुए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। टोलेबाजी बोलते हैं जिसको, शेला पागोटा बोलते हैं जिसको। तो ऐसी चीजें जो है कुछ अलग मीनिंग में, ड्यूअल मीनिंग में अगर कोई चीजें आप लिखते हो तो उसको अलाउ किया गया है, लेकिन उसको भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे आर्टिकल 14, 19 और 21 में। तो हमको लिबर्टी दिए हैं, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हम जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को हम वर्शिप कर सकते हैं, उसके ऊपर फेथ रख सकते हैं। हम जिस धर्म पे बिलीफ करते हैं, फेथ रखते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड दैट इज व्हाई बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हैज बीन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस अँड ऑफ अपॉर्च्युनिटी। पहा, आपल्या सगळ्यांना all of we have got equality of status. Now see, I am having a status of lawyer. I am also having a status of an Indian. I become first of all Indian citizen. Then I am having a status of advocate, and that too a PhD advocate. You all studying in engineering, when you come out with a degree, you will get a status of engineer. Some person who is studying chartered accountant, see, so he will be able to get the status of chartered accountant. A person who is learning in MBBS, he will get a status of doctor. Now, in the same way, some people who are doing different kinds of work in their area, they will get the status. So, after becoming advocate, I get an opportunity to work in the court of law. I'm getting an opportunity to work as a counsel in different industries. I'm also getting a chance to work as a law officer. I'm also getting an opportunity to work as a judge if I qualify the exams. I'm also getting the opportunity to work for my nation, to be a part and parcel of a legal team of India or legal team of our legislative assembly. Now, in the same sense, each and every person, when you become an engineer, you are having an opportunity, equal opportunity, and that equality of status and of opportunity is given to you in all the sense. एक एग्जाम्पल लेते और इस पॉइंट को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल में स्टेटस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। किस तरह से स्टेटस मिला है? हमको नाम दिया गया, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सोल्जर है, ये प्रधानमंत्री है, ये प्रेसिडेंट है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये स्पीकर है। ये क्या है? हमें एक स्टेटस दिया गया है और कुछ भी नहीं है तो लास्ट में आई एम इंडियन सिटीजन। जो घर में बैठ के कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता है तो एटलीस्ट उसको
एक ह्यूमन बीइंग बोलकर उसको एक स्टेटस है, इंडियन ह्यूमन बीइंग। सो एवरी पर्सन इज हैविंग इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस, सभी का स्टेटस उसके उसके हिसाब से करेक्ट है, और हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ गया कि फलाना फलाना इतने इंजीनियर्स चाहिए। अभी रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जो मैंने हमारे कुछ टेक्सटाइल के बच्चों को फाइनल ईयर के भेजा भी था। तो उसमें 278 टेक्सटाइल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट निकला था। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से है और वहां पर टेक्सटाइल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। So whenever we are looking after this, then fraternity दी है, fraternity assuring the dignity of the individual, हमारी डिग्निटी को संभालने का काम भी हमारा नेशन कर रहा है। और सभी का बोलकर नहीं बोला है, इंडिविजुअल बोला है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हमको डिग्निफाई किया है। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एचओडी, क्लार्क, वॉट एवर डिग्निटी, डिग्निफाइड दिया है। वाइस चांसलर, chancellor, these are different aspects which has been given. This dignity of individual has been kept in the mind, and the unity and integrity of the nation, हम सब unitedly एक जगह रहते हैं। देखिए हमारे क्लास में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग एरिया से सभी लोग आए हैं, लेकिन हम सब लोग एक जगह इकट्ठा मिलकर बैठे हैं और आज इस लेक्चर में हैं। यूनिटी बनी है हमारी, है ना। अलग अलग क्लासेस से, कोई टेक्सटाइल से है, कोई केमिकल से है, कोई ईएक्सटीसी से है, कोई सिविल से है, अलग अलग क्लासेस से सभी लोग हम आए हैं। और इसी तरह अलग अलग रहते हुए भी एक जगह यूनाइटेडली वी केम टुगेदर एंड वी आर लर्निंग ओवर हियर। So what it is one kind of unity which has been created due to the provision of the constitution. हम अगर छोटे छोटे ग्रुप भी बनाते हैं तो वहां पर भी यूनिटी बन जाती है। हमारी क्लास है, वो क्लास हमारी यूनिटी है। और यही यहाँ पर बताया है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये कहाँ से काम करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स में से काम करता है। तो ये सारी चीजें सॉवरिन से लेकर नेशन तक ये मिडिल पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेस के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको परमिशन दिया है। नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि डू हियर बाय अडॉप्ट, enact and give to ourselves this constitution। ये तीसरा पार्ट जो है वो डिक्लेरेशन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, और हम खुद को ही ये बहाल किया है। वी हैव गिवन इट टू अवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज नथिंग बट अवर प्रीएम्बल। आणि त्याच्यानंतर प्रिएम्बल मध्ये त्याचे पर्पस काय आहेत, ते कसे पर्पसनी सर्व करतो और प्रिएम्बल ते पाहूया। नाउ फर्स्ट इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच इट कम्स। थोडंसं मोठं करूया म्हणजे तुम्हाला पण दिसायला चांगलं सुटेबल होईल। आणि so we the people of India is the source. Secondly, it contains enacting clause which brings into force the constitution. आपण कालही हे एक मुद्दा पाहिला होता, परंतु आपल्याला थांबावं लागलं। हे एनॅक्टिंग क्लॉज आहे, सॉवरिन पासून तो नेशन पर्यंत। हा एनॅक्टिंग क्लॉज मध्ये बरेच मुद्दे जे आहेत आपण काल थोडक्यात डिस्कस केले होते। सो it brings into force the constitution. Depending upon these parameters, the constitution is going to work on. And whenever such parameters are going to get looked after, we have to see that the functions which are provided in the preamble, depending upon those functions, number of clauses has been created in our Indian constitution. So it declares the great rights and freedoms which the people of India are intended to secure to all citizens, and such basic type of government and polity which was to be get established. आता आपल्या
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आपल्याला अनेक राईट्स दिलेले आहेत, ज्याला आपण म्हणतो फंडामेंटल राईट्स. नुसते फंडामेंटल राईट्स नाहीयेत, काही फंडामेंटल राईट्स आहेत, काही कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स सुद्धा आहेत. जसं सिटिझनशिप हे आपला कॉन्स्टिट्यूशनल राईट आहे, तो आपल्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. इट इज ऍब्सोल्यूट की तुमची सिटिझनशिप आहे तर ती ऍब्सोल्यूट आहे. राईट टू प्रॉपर्टी ते तुमचा अधिकार आहे, परंतु सब्जेक्ट टू कंडिशन आहे, तिथं थोडेसे कंडिशन टाकलेले आहेत. पण सिटिझनशिप मध्ये सुद्धा थोड्या बहुत तर कंडिशन राहणार प्रत्येक क्लॉज मध्ये. परंतु सिटिझनशिप हे कॉन्स्टिट्यूशनल राईट आहे. राईट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राईट आहे. पहिले फंडामेंटल राईट मध्ये होतं, नंतर त्याची अमेंडमेंट केली आणि त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल राईट केला. कारण ज्यावेळेस इमर्जन्सी डिक्लेअर झाली तर त्यावेळेस तो राईट सस्पेंड होऊ लागला. म्हणजे त्या काळामध्ये एखाद्याने प्रॉपर्टी घेतली, खरेदी केली किंवा विक्री केली तर तशा वेळेस त्याचं नुकसान होऊ नये याच्यासाठी त्याला राईट टू प्रॉपर्टी मध्ये आणलंय, कॉन्स्टिट्यूशनल राईट मध्ये आणलंय. So in this way there are certain rights which has been declared, then certain freedoms are going to get declared. फंडामेंटल राईट्स मध्ये फ्रीडम सुद्धा दिलेले आहेत आपल्याला. मग ते फ्रीडम कुठले आहेत, ते फ्रीडम कशा पद्धतीचे आहेत, अशा फ्रीडमचा वापर आपण कशा पद्धतीने करतो, तर हा फ्रीडम जो आहे अत्यंत महत्वाचा आहे. सो when we are talking about the freedom which has been given in our fundamental rights, those freedom are depending upon totally this factors which are present in our preamble. ते आपल्याला दिलेत कशामध्ये आहेत, हे दिलेले आहेत आर्टिकल 19 मध्ये. जसं मी तुम्हाला सांगितलं फंडामेंटल राईट्स जे आहेत आपल्याला पार्ट 3 मध्ये दिले आहेत. आर्टिकल 12 पासून आर्टिकल 35 पर्यंत आपल्याला फंडामेंटल राईट्स दिलेले आहेत. परंतु हे फंडामेंटल राईट्स जे काही दिलेले आहेत त्या फंडामेंटल राईट्सच्या बेसवर आपण काय करतोय, वी आर ओनली रिस्पेक्टिंग राईट्स, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द ड्युटीज. सो आर्टिकल 51A मध्ये आपल्याला ड्युटीज पण दिलेल्या आहेत. म्हणजे ह्या प्रिएम्बलचा जो पर्पस आहे तो पर्पस इथे आपल्याला दिसतोय की इट प्रोव्हाइड्स अस ग्रेट राईट्स. कुठे दिसतो, जस्टिस मध्ये दिसतो, लिबर्टी मध्ये दिसतो, इक्वॅलिटी मध्ये दिसतो, फ्रॅटर्निटी मध्ये दिसतो, डिग्निटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल मध्ये दिसतो. मग ह्या सगळ्या कन्सेप्ट मध्ये जर आपल्याला आपला अधिकार दिसत असेल तर ते कुणी दिलाय, तर तो प्रिएम्बलने दिलाय. प्रिएम्बल मध्ये त्याचा बेसिक फॅक्टर जो काही आहे तो बेसिक फॅक्टर आपल्याला अलाउ करून दिलेला आहे. नाउ दिस प्रिएम्बल इज गिव्हिंग सर्टन फ्रीडम्स. आता फ्रीडम्स पण दिलेले आहेत. कुठल्या प्रकारच्या फ्रीडम पाहायला मिळतात आपल्याला, राईट, वेगवेगळे राईट्स आहेत आपल्याला. आर्टिकल 19 मध्ये 6 गोल्डन फ्रीडम्स दिलेले आहेत. त्या 6 गोल्डन फ्रीडमला आपण पाहणार आहोत. ते फ्रीडम काय आहेत, हे सगळे फ्रीडम आपल्याला फंडामेंटल राईट्सच्या टॉपिक मध्ये दिलेले आहेत. म्हणजे एकतर राईट पण आहे आणि फंडामेंटल फ्रीडम्स पण आहेत, फंडामेंटल राईट्स पण आहेत, फंडामेंटल फ्रीडम्स पण आहेत. म्हणजे दोन गोष्टीला एकत्रित करून आपल्याला जास्त अधिकार दिलेले आहेत. जर हे फंडामेंटल फ्रीडम्स दिलेले नसते आणि फक्त राईट्स दिलेले असते तर मग आपल्याला फार अडचण झाली असती. We will be in very much problem that if the freedoms have not been given, which the people of India are intended to secure to all the citizens. So every citizen who is there is getting all the fundamental rights, all the constitutional right, all the legal rights which has been given by our constitution. Along with that, certain freedoms, that is fundamental freedoms, have been given, and these fundamental freedoms are completely attached with each and every citizen of India. Now this basic type of government and polity which was to be get established is nothing but a purpose that is served by our preamble of India. So clear up till this? If you are clear, please type CC in the chat box. Great. Now next point is there. The preamble declares in unambiguous term that it is the people of India who have adopted, enacted and given themselves the constitution. आता ambiguous द्विअर्थी, unambiguous clear cut.
अनएम्बिग्युअस म्हणजे क्लिअर कट ज्याला म्हणतो आपण. जसं आता मी तुम्हाला एक सांगतोय आणि एक करतोय, अशा गोष्टी व्हायला नाही पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल अनएम्बिग्युअस काय असतं, ज्याच्यामध्ये पार्शालिटी ज्याला म्हणतो आपण, की पार्शालिटी करणे तिथे, म्हणजे सगळ्यांना सांगणे की कायदा तुमच्यासाठीच काढलेला आहे, बघा तुम्ही कायद्यात जाऊन त्या कायद्याचा वापर करा, अशा सगळ्या गोष्टी सांगणे. परंतु तो कायदा ज्यांना वापरण्यासाठी सांगितलेला आहे त्यांच्याच अगेन्स्ट मध्ये कायदा उभं करणे, जसं इंग्रज लोक करत होते. तर तसं अनएम्बिग्युअस टर्म्स आपल्याकडे आहेत, म्हणजे क्लिअर आहेत, अँबिग्युअस नाही आहेत. अँबिग्युअस असेल तर द्विअर्थी त्याचा अर्थ निघतो. अनेक असे ओळी असतात लिहिलेल्या, आपण म्हणतो ना काही कविता आहेत, त्या कविता आपण म्हणत असताना शालजोडे मारतो आपण, तर ते वर्ड्स वेगळे असतात, त्याचा इफेक्ट वेगळा असतो. तर तशाच गोष्टी इथे जे आहे प्रिएम्बल मध्ये जे आहे, अशा काही अँबिग्युअस टर्म्स वापरलेल्या नाहीयेत, त्या अनअँबिग्युअस आहेत, म्हणजे टोटली क्लिअर आहेत की आमचं कॉन्स्टिट्यूशन काय करतंय. तर प्रिएम्बल डिक्लेअर्स unambiguous terms that it is the people of India who have adopted, आम्ही अडॉप्ट केलंय, एनॅक्टेड, आम्ही आमच्यासाठीच एनॅक्ट करून घेतलेला असा कॉन्स्टिट्यूशन, अँड गिवन देमसेल्फ म्हणजे अवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, आम्ही आमच्या करता, आमच्या भारतीय लोकांकरता हे अडॉप्ट केलंय, एनॅक्ट केलंय ना, आम्हाला स्वतःलाच बहाल करून घेतलंय हे कॉन्स्टिट्यूशन. And that is why it declares therefore that the source of authority under the constitution is the people of India. There is no subordinate to any external authority. आता जेव्हा आपल्याला भारत स्वतंत्र झाला त्याच्यानंतर कुणी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी म्हणून, कुणाची सबऑर्डिनेट अथॉरिटी म्हणून आपण ऍक्ट करत नाहीत, किंवा कोणी सांगितलं आपल्याला की बाबा तुम्ही हे फलाना कॉन्स्टिट्यूशन वापरा, तर ते कॉन्स्टिट्यूशनच आपण वापरतोय, म्हणजे आपण सबऑर्डिनेट झालो. असं एक्सटर्नल आपल्यावर कुणाचंही प्रेशर नाहीये. इंडिया नाउ इज इंडिपेंडेंट, and this independence we have got in 1947 only. Right now there is no external authority whose force is there on taking each and every decision on Indian people, neither on Indian government. आपल्याला कुठली एक्सटर्नल अथॉरिटी नाही की तुम्ही अमुक हेच करा आणि हेच कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करून म्हणणारे. आता आपलं कॉन्स्टिट्यूशन चालवणारे वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपणच सगळे पीपल ऑफ इंडिया आहोत. आणि म्हणून सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया आहे, आणि कॉन्स्टिट्यूशन कोणावर अप्लिकेबल आहे तर पीपल ऑफ इंडियावरच अप्लिकेबल आहे. पीपल ऑफ इंडिया मीन्स वी आर ऑल, आपण सगळे त्याच्यामध्ये येतो. सो दिस इज द पर्पस विच इज प्लेस्ड इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन्स preamble. Followed? If you have followed, please type followed in the chat box. Great. Now after this there are certain objectives which we have already discussed in this clause of preamble, but here I have sorted it out that you must know these objectives in a very well manner, and that is why I am flashing it over here. So there are 4 such objectives which has been placed in our Indian constitution, and that is under the part of preamble as well. So the number 1 is justice. Our justice is social, economic and political justice. हे सगळे जस्टिस मिळण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती प्रयत्न करतो. लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ अँड वर्शिप, वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. मी इथं फक्त त्याला तुम्हाला समजण्याकरता हे ऑब्जेक्टिव्ह बाहेर काढून असे पॉइंट वाईज नमूद केलेले आहेत. इक्वॅलिटी, सगळ्यांना इक्वल स्टेटस मिळणं, सगळ्याला अपॉर्च्युनिटी देणं. टू प्रमोट अमॉंग देम ऑल, सगळ्यांमध्ये त्याला प्रमोट करणं. आणि फ्रॅटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तर या सगळ्या ऑब्जेक्टिव्हच्या बेसवर जगातलं सर्वोत्कृष्ट कॉन्स्टिट्यूशन जर कुठं असेल तर ते भारतामध्ये आहे. There are certain things which we have to say first of all in part of this constitution when such questions were arise in front of Supreme Court of India. So few people they have added certain cases that whenever there is an amendment, such amendment to preamble, whether it constitute
that preamble is a part of constitution? And can preamble be amended under Article 368? And what 42nd Amendment and preamble is there? So to know these all factors, the question has arisen in front of Supreme Court of India. जब Supreme Court of India के सामने इस तरह का सवाल आया, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना शुरू हो गया, लोगों ने प्रियम्बल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको जब सवाल पूछा तो मैक्सिमम लोगों ने यस बोला, और मैंने बोला ऐसा कोई है, तो अरुंधति अकेली ने उसने बोला कि सर मुझे नहीं लगता है कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी जो है हो सकता है। सो यहाँ पर बीरूबारी का केस है, बीरूबारी's केस वेयर ही हैज बीन फ्लैश्ड इन 1960 1960 में बीरूबारी ने ये सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब उसका केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजें बताई, विल सी वन बाय वन एंड वी कैन नोटिफाई दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble was not the part of the constitution and therefore it could never be regarded as a source of any substantive power। ऐसा बताने के बाद में तो आप लोग भी हक्का बक्का रह जाएंगे, सर अभी तो आप सब बता रहे हो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, लेकिन एक वर्ड याद रखिए, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट may come and it may be prospectively overruled according to the situation in that particular case. So in the case of Birubari, here Supreme Court has held that preamble was not the part of the constitution and therefore it could not be regarded as a source of substantive power. And here the Supreme Court said that preamble to the constitution is a key to open the mind of the makers। हमने ये पॉइंट को वहां ऊपर भी देखा था। प्रियम्बल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए उनके दिमाग की चाबी। जब लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो वो चाबी है सिर्फ, एंड इट शोज द जनरल पर्पस फॉर विच दे हैव बीन मेड द सेवरल प्रोविजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जनरल पर्पस के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस बनाने हैं इस बेसिस पे बनाओ। डोबल मानाने जिसको बोलते हैं ना, जनरल पर्पस, डोबल मानाने, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स एंड शो द जनरल पर्पस फॉर विच दे मेड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन हुई, इसलिए इसकी अटैचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में नहीं है। प्रियम्बल अलग है, इसको देखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसको देखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फर्दर इट सेज दैट सच पावर्स आर एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी में ऐसे पावर्स इस्तेमाल किए हैं, ना कि प्रियम्बल में। एंड it has limited application and can be restored to where there is any ambiguity। two meaning देखिए, ambiguity, unambiguous, ambiguous। ambiguity माने दो मीनिंग्स आते इन द स्टेट्यूट। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब किसी स्टेट्यूट में ड्यूअल मीनिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, ड्यूअल मीनिंग का चीज इस्तेमाल किया गया हो, एम्बिग्विटी फॉर्म होने वाली दिखती हो, तो तब इसका एप्लीकेशन हो सकता है। And it has a limited application that can be restored to where there is any ambiguity in the statute। यानी कि बीरूबारी के केस में ये सारी चीजें जब सामने आना शुरू हो गई तो लोगों ने सोचा कि सच में प्रियम्बल जो है, यहाँ पर एक तो बात ये बताई है और दूसरी बात में ये बोला जा रहा है कि प्रियम्बल तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है नहीं। तो फिर जब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको एक्सप्रेसली कैसे ग्रांट करेंगे? लेकिन फिर बताया गया इसी केस में जो बताया था, इट सेज दैट सच पावर्स आर एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 395 आर्टिकल लिखे हैं वो बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहां बताया है
कि what exactly it is. So in Birubari's case, the Supreme Court has held that preamble is not the part of the constitution and therefore it could not be regarded as the source of substantive power. Such powers are expressly granted into the body of the constitution. What is true about the power is equally true about the prohibitions as well. जैसे पावर्स के बारे में बताया है, प्रोहिबिशंस के बारे में भी बॉडी में ही बताया है. Now it has limited application and can be restored to where there is any ambiguity in the statute. If the terms used in the constitution are ambiguous or capable of two meanings in the interpreting them, some assistance may be taken from the objectives enshrined in the constitution and the construction which fits the preamble may be preferred. तो बीरूबारी के केस में ये बताया है कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है वो कंस्ट्रक्शन कब पता चलेगा, कोई एम्बिग्विटी अगर फाउंड हुई तो, यानी कि स्टैट्यूट बना रहे हैं और वो स्टैट्यूट में अगर कोई चीज हमको दिखाई पड़ रही है कि ये इसमें चाहिए ये नहीं है, या दो मीनिंग का कोई क्राइटेरिया वहां पर आ रहा है, एक में एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नहीं होगा, इस तरह से अगर कुछ है तो वो एम्बिग्विटी है. और ऐसी एम्बिग्विटी हमारे पास में नहीं देखने को मिलती है हमारे प्रियम्बल में, वो एम्बिग्विटी यहाँ पर फाउंड नहीं होती. और इसीलिए प्रियम्बल जो है इसके ऊपर डिपेंड, एवरीथिंग हैज बीन रिटन डाउन इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फॉलोड हियर. इफ यू आर क्लियर प्लीज टाइप CC इन द चैट बॉक्स. Right now we will see केशवानंद भारती's case. केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. Supreme Court has rejected the view of Birubari's case and held that preamble is the part of the constitution. Arundhati, right now you have to speak over this. Constitution is the part of the preamble is the part of the constitution. Birubari's case में जो decision दिया था वो reject कर दिया. Supreme Court said the preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision expressed in the preamble. ये अलग नहीं है, अलग है तो क्यों रखा है इसमें, इसके ऊपर क्यों प्रोविजन बनाए. तो इट इज द बेस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. अगर हम घर बनाते हैं तो जिस बेस के ऊपर घर बनाते हैं तो उस बेस को अगर निकाल दिया जाए तो घर गिर जाएगा. And preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision expressed in the preamble. एक बड़ा विजन रखना चाहिए क्योंकि preamble ने अगर बताया नहीं होता कि हमारे preamble में जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है तो हम जस्टिस के बेस के ऊपर प्रोविजन कैसे बना पाते. अगर preamble में बाकी सारी चीजें जो लिखी है 4 पॉइंट फॉर्मूला, वो 4 पॉइंट फॉर्मूला अगर दिया नहीं होता और ये 4 पॉइंट फॉर्मूला में जब उसने पर्पसेस जो सर्व करने के बारे में बताया था, किस पर्पस से हम क्या सर्व करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहेंगे, डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स लिबर्टी कैसे रहेगी, इक्वालिटी कैसे रहेंगी, फ्रैटर्निटी कैसे रहेंगी, ये अगर नहीं बताया होता तो हम कौन सी बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखते. तो कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध जो प्रियम्बल से है वो बहुत गहरा संबंध है और इसको हम भूल नहीं सकते. एंड दैट इज व्हाई इन द ग्रैंड एंड नोबल विजन इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल तो सार है, सारांश है. सारांश कौन सी चीज का है, कॉन्स्टिट्यूशन के 395 सेक्शन के अंदर. अगर किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो उसको पूरे 395 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद में फिर उसको विचार करना पड़ेगा कि इसमें डेमोक्रेसी है क्या, इसमें इक्वालिटी है क्या, इसमें हम सभी को फ्रीडम्स दिए हैं क्या, इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं तो ये किधर डायरेक्शन करते हैं, इसमें लेजिस्लेशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है क्या, ये सारी चीजों का विचार करना पड़ता था. लेकिन प्रियम्बल ने एक ही पेज में सारी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया. कोई व्यक्ति आता है
बाहर से, तो वो पहले आकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ता है तो प्रियम्बल मेक्स आइडिया ऑफ दैट पर्सन very crystal clear that it is having a grand and noble vision that has been expressed in the preamble only. And that is why in Keshwanand Bharati's case, the preamble was relied on imposing implied limitation. देखिए, implied limitations दिए। इस पॉइंट को हम अगले पॉइंट में फिर से केशवानंद भारती की केस के अंदर और एक सवाल किया गया था, उसमें आर्टिकल 368 से रिलेटेड है, वो वहां पर भी डिस्कस करने वाले इन डिटेल। So preamble was relied on imposing implied limitations on the amending power of parliament. यहां पर implied limitation दिया है amending power को, नहीं तो कल क्या हो जाता था, आर्टिकल 368 को उठाया, preamble में amendment कर दिया, और preamble में जैसे amendment किया तो constitution में नई provision आ जाएगी। तो बहुत लिमिटेड पावर्स जो है उसके अंदर रखा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है उसको उसके अंदर से कुछ चीज ढूंढ कर निकाली, तो उसको हम वर्ड को ऐड कर सकते हैं, उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई amending power of parliament under article 368 of the constitution is very much limited in imposing or amending the preamble. And that is why lastly in Keshwanand Bharati's case, Supreme Court has declared that and held that in this case, it was held in Keshwanand Bharati's case that basic structure in the preamble cannot be amended under article 368. article 368 के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। अभी ये सवाल के बाद में फिर सवाल वापस आया, ये कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। फिर किसी केस में और सवाल आया कि कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि as it was argued that preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution in the case of Birubari. But however, Supreme Court has held that preamble is a part of the constitution, and therefore on this point the Birubari's opinion was wrong. And on the question whether the preamble can be amended, the majority of the judges held that the preamble is the part of the constitution. It can be amended subject to this condition that basic feature in the preamble cannot be amended. यानी कि यहां पर लिमिटेशन लगा दिया कि प्रीएम्बल में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, तो यस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस उसको है कि बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का नहीं लगना चाहिए। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। फाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, प्रीएम्बल को जो है अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर्स को बगैर धक्का दिए। फिर लास्ट में 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया उसके ऊपर थोड़ा फ्लैश करते हैं और आज प्रीएम्बल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो देयर आर नंबर ऑफ केसेस व्हिच हैज बीन आस्क्ड, जैसे सवाल किया था हमारे हेमंत ने और कुछ मेरे और दोस्तों ने भी किया था, तो ये उसका आंसर है। द अमेंडमेंट हैज इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स इन द प्रीएम्बल, दैट इज सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी. Actually, these concepts were already implicit in the constitution. The amendment merely spell out clearly these concepts in the preamble. ये उसका clear cut first answer है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में आई केशवानंद भारती के केस के बाद में। तो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें इस सोशलिस्ट वर्ड के बारे में उनको पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड the effect of word socialist in the preamble, and it was held that the addition of the word socialist might enable the code to learn more in favor of nationalization and state ownership of an industry. तो हमारा नेशनलाइजेशन और स्टेट ओनरशिप का जो कंसेप्ट है उससे ये सोशलिस्ट कंसेप्ट बाहर निकलती है। तो
वही कंसेप्ट को सोशलिस्टिक अप्रोच से इस एक्सेलवियर में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि वर्ड सोशलिस्ट इज हैविंग इफेक्ट of that, and that is why this has been added to the word socialist added in the preamble. फिर बाद में डीएस नारकर साहब का केस आया, डीएस नारकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The Supreme Court has held that basic framework of socialism is to provide a decent standard of life to the working people, especially to provide security from cradle to grave. हमारे बचपन से लेके हमारे मरने तक हमको जो वर्किंग पीपल को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लगती है, सिक्योरिटी लगती है, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए सोशलिज्म का कंसेप्ट चाहिए. और उसीलिए डीएस नारकर की केस में जो पूछा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नारकर की केस को उसके हिसाब से ही आंसर दिया कि हमको पैदा होने से मरने तक जो सारी चीजें दी जाती है वो कौन सी बेसिस पे देंगे भाई. तो दैट इज द सोशलिज्म, कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म के बेस के ऊपर देंगे. फिर द वर्ड इंटीग्रिटी इज इंटेंडेड, तो इस केस में ये दो तीन वर्ड्स को लेकर इन्होंने सवाल किए थे डीएस नारकर ने. फिर इंटीग्रिटी इज इंटेंडेड टू पुट एन एंड टू द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड मेक पीपल फील दैट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज देयर होम. हम बोलते हैं ना, हमारे पास में बीकानेर से लोग आए और बीकानेर जो शॉप है शुरू कर दिया. हमारे पास में से बेंगलोर में से लोग आए, बेंगलोर बेकरी शुरू कर दी. लेकिन वो किधर भी शुरू कर सकते हैं इंडिया के पार्ट में. क्यों? तो वी फील दैट इंडिया इज माय होम, एंड दैट इज व्हाई इंटीग्रिटी, वर्ड इंटीग्रिटी पुट इन द टू एंड द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कि ये सेपरेट है, वो सेपरेट है. फेडरलिज्म में हम क्या देखते हैं? सेपरेटिज्म ही देखते हैं फेडरलिज्म में. क्यों? तो ये स्टेट है. अच्छा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं हम लोग. अब यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन हर स्टेट का अलग आपको जो है सिटीजनशिप लेना पड़ता है. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है क्या? आप गुजरात में रहते हो तो आपको गुजरात की सिटीजनशिप अलग, महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र की सिटीजनशिप अलग, आप पंजाब में रहते हो तो पंजाब की सिटीजनशिप अलग, और आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी. विदाउट परमिशन यू कैन नॉट बी एबल टू मूव. तो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है, इसको एंड करने के लिए इंटीग्रिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. and that is why we are feeling that every person of India is feeling that I am a Indian, और इसीलिए हमको एक ही सिटीजनशिप है. तो यहाँ पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को खत्म कर दिया गया और इंटीग्रिटी का विचार किया गया. फिर इसी के और एक जो सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, वर्ड सेक्युलरिज्म मीन्स. फिर सेक्युलरिज्म को क्यों लाया? तो सेक्युलरिज्म को लाने के पीछे का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि सर्वधर्म समभाव. द वर्ड सेक्युलरिज्म मीन्स ए स्टेट विच डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन. हम कई बार बोलते हुए, बात करते हुए बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, इंग्लिश कंट्रीज है. तो वहां पर क्या आ जाता है? रिलीजन आ जाता है. हमारे देश में किसी रिलीजन को महत्व नहीं दिया गया है, सभी को समभाव दिया है. महत्व नहीं दिया है माने कि उसका थोड़ा सा मीनिंग नेगेटिव में बात करते हैं तब ये आता है कि ऑल आर इक्वल, सभी धर्म इक्वल है, इक्वल फुटिंग के ऊपर है. सो वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग एनी रिलीजन एज सच, and it treats all religion equally, and that is why the concept of secularism was already implicit in the constitution, and that's why this secularism, word secularism has been utilized in our preamble. तो ये ऐड करने का मतलब ये था कि ऑलरेडी हमारे पास में जो रिलीजन है, वो कोई रिलीजन को हम रिकॉग्नाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, and that is why concept of secularism was already present implicit in the constitution. just we have given कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अरे सेक्युलरिज्म के भी पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, तो क्यों ना वर्ड इसमें ऐड किया जाए. तो वर्ड को ऐड किया. सो इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग great effect to this all. I once again read this constitution in a short while. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute into India into a sovereign,
socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hence, this preamble. So, followed all this concept of preamble. If you have followed, please type followed in the chat box. Great.